His dream don't materialize, but Payal made her dream which comes to true. Care for You Foundation was formed with the vision to serve senior citizens residing in old age homes and lesser privileged children who were relegated to the fringe of the society. The old and the young are our past and our future. If we don't take care and nurture them, the part of us is lost forever. With this beautiful thought, Payal found the Care for You Foundation. She has actively involved in organizing the various charitable events and fundraising activities to support unprivileged children and women of the society. Care for You Foundation is headquartered at Pune and in the branches at Ahmednagar and Indore, Nasik, Belgavi. So spread is wide. Care for You Foundation caters to the more than 25 plus cities across Maharashtra with more than 700 donors and more than 100 volunteers working for the cause. Payal was also bestowed with the prestigious title of Mrs. Achievers in the Mrs. Maharashtra 2018 Beauty Vision. Nevertheless, besides being philanthropist, a writer and a runner, Payal is a practicing chartered accountant in Pune and handling various clientele of direct and indirect taxation, internal audit, bank audits and other financial matters. Last but not least, she is married with CA Roshan Rathi for past 12 years and is blessed with a daughter who is 8 years old. Her husband and daughter's support reflect in her commitment to uplift the society. Payal has an inspiration to many of us. One more thing I would just like to add is I was a witness. She has been a Mahesh Idol finalist for the current year. She was amazing. She has spoke very well. So many of us have witnessed it. Top 10 में आना एक बहुत बड़ा achievement है. About work and we feel like office में उतना नहीं we are putting it. If we are at home, again we feel कि यार office में कुछ lose हो गया. So according to you, what qualities are required to achieve such goals in life? Later, can this social activity which you are doing, like Care for You Foundation, social activity, will help us in the building our mental peace and satisfaction simultaneously with work? What you have experienced with profession, personal and social life, social activity. Okay. So actually we are having two different questions. Yeah. So first comes on to emotional part, on to losing on to things, and later we can take this. Yeah. So it's okay वाला फंडा लाना पड़ता है because we cannot be the best everywhere. We can be the best in the fields we choose. So 3 फील्ड अगर चूज करें तो 3 फील्ड में you can be best. और ये जो एक अपने दिमाग में रहता है बेस्ट बनने का, ये है this is good. I will not say कि बेस्ट मत बनो, why not? हर चीज जो चीज कर रहे हो उसमें बेस्ट बनो, but at your pace. अगर आपको वो हो रहा है तो see if your capacity is कि बेस्ट खाना बना के बेस्ट ऑफिस जाके घर पे आके बेस्ट पढ़ाई लो, if it is in your capacity then why not? I will not say कि उसमें भी आप it's okay करो, no. But जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं this is exhausting, मेरे को ही खाना बना के ऑफिस में भी बैठ के पढ़ाई लेना नहीं हो रहा है, तो कुछ तो फिर लेट गो करो. देन अगेन इट कम्स वही वापस बात आ रही है, फिर थोड़ा खाने में किसी का हेल्प ले लो, ऑफिस में किसी स्टाफ को भी ऐड कर दो, उसमें भी चैलेंज रहता है. सी मेरा ऑफिस था छोटा सा था पहले, फिर हम लोग एक्चुअली देखा गया तो स्टाफ अफोर्ड नहीं कर सकते. आइडियली स्पीकिंग अगर मेरे जगह पे कोई मेल सीए होता तो उस टाइम पे स्टाफ नहीं रखता, क्योंकि फिर पीछे कुछ बचता ही नहीं है स्टाफ और रेंट पे. मेनी ऑफ यू विल एक्सपीरियंस दिस. तो माय हस्बैंड वाज नेवर विथ मी इन प्रैक्टिस. वो हमेशा से जॉब में है एक्सेंचर में एंड आई वाज इन प्रैक्टिस ऑलवेज. ऐसे बहुत साल गए, नॉट मंथ्स और डेज, आई विल रिपीट, ऐसे बहुत साल गए जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस. ओके, जितना आता है रेंट और सैलरीज में उतना गया, बट एटलीस्ट ऑफिस शुरू तो रहा.
यू नो दैट वाज माय पॉइंट। उस टाइम पे अगर बंद कर देते तो फिर से शुरू करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा एनर्जी और मोटिवेशन लगता है। इसीलिए बहुत साल ऐसे गए जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस था। पहले सिर्फ एक ही कमरे का ऑफिस था, वहाँ पे एक ही टेबल और एक ही प्रिंटर था। फिर स्लोली फिर कभी रोशन को बोलना पड़ता था कि इस बार थोड़ा ये सब तुम पे कर दो, नेक्स्ट मंथ में आ रहा है। तो ये सब होते रहता है, बट वी हैव टू मैनेज, यू नो। तो वो जो है कि हर चीज एकदम बेस्ट होनी चाहिए, मेरे बच्चे को ये ऐसे नहीं है। सी, अगर कभी कभी ट्यूशन लगाने में भी ईगो हर्ट होता है, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यू नो ये भी मैंने देखा है। बट सी, इफ आई एम एबल टू टीच हर, नथिंग लाइक दैट। ऑफ कोर्स जो मैं पढ़ाऊंगी और ट्यूशन टीचर पढ़ाएगी, बट देन प्रायोरिटी टू प्रायोरिटी चेंज होते रहता है ना। उसकी एग्जाम्स आएगी तो एक आध महीना थोड़ा ऑफिस में प्रायोरिटाइज मत करो, उधर करो। बट ये जगलरी अपने को एज अ लेडी करते ही रहना पड़ता है। वो ऐसे ग्लास फेंकते हैं तो कोई 2 ग्लास है, एक ऊपर है, ये सब तो होना ही है। तो ऑलवेज बेस्ट बनने की कोशिश करो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल पीस। वो इतना पैनिक मोड में मत जाओ कि अब मैं क्या करूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी इज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, ये थोड़ा मम्मी के बारे में बोल रही हूँ तो मतलब अब मेरी मेड के पास हमेशा मेरा ध्यान नहीं रहता है, तो इट्स ओके। अपने बहुत मारवाड़ियों के बहुत दिमाग में है कि वो मेड ये ऐसा वैसा। मेरे रोटी गोल नहीं आती थी बिकॉज वी वर ऑलवेज हाँ ना। आंटी कम्स होम मैं तो सी हो। जिस दिन आंटी आएंगे विल गो टू पूरा जगह पे। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी मम्मी आ रही है कि सास आ रही है। मम्मी आने के पहले अरे मम्मी आ रही है, ये ठीक है। आई सेम स्टोरी। मम्मी आ रही तो सब जगह पे मम्मी जी आए थे, ठीक है कोई चीज नहीं। यू नो, सो जब शादी हुई थी आई वाज मेकिंग रोटी और वो गोल तो बनी नहीं। तो माय मदर इन लॉ वाज, क्यों टेंशन ले रही है, 3 फोल्ड करने का, रख देने का, किसी को कुछ समझेगा नहीं, गोल है कि क्या है। ऑलवेज यू नो शी इज सो स्वीट। ऑलवेज ये दिमाग में उन्होंने डाला है कि इट्स ओके। सो अगर मदर इन लॉज वगैरह भी ये इट्स ओके बोलने लग गए ना तो इट्स रियली फाइन। वो एक रेणुका शाहनी की कोई तो एक एडवर्टाइजमेंट है ना, वो उसके बहू को समझाती रहती है। तो इट्स ओके का अप्रोच ले लो। इट्स यू नो इट्स रियली ओके बी टू बी नॉट ओके आल्सो। दैट इज अ फंडा आजकल बहुत लोग बोलते हैं। So I connect to one line what Payal has said कि in your absence if 80% of work is done as you do 100% that means that work is done। मतलब अगर आप 100 काम करते हैं और आपकी जगह आपकी टीम 80% वो काम कर सकती है, मतलब वो काम हो रहा है। अगर आप 100% करते हो तो आपकी टीम 100% कभी नहीं कर पाएगी। What you do your team cannot do। So delegation and then getting time for yourself again। Let us relate to this also, Payal, and we put up this scheme. How does care for you help you in your mental peace and satisfaction, juggling around your work-life balance? Yeah, so that is really important कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी में जो खुद को हैप्पीनेस मिलता है ना, वो शायद ही उन लोगों को इतना मिलता है कि नहीं पता नहीं, पर जो खुद को सेल्फ सेटिस्फैक्शन, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि चैरिटी खुद के लिए करो, लोगों के लिए नहीं। अगर आपको पीस चाहिए, आपको ऐसे एकदम रियल वाली खुशी चाहिए तो चैरिटी करो, दूसरों के लिए नहीं। वो दूसरों का तो ठीक है, आप नहीं तो कोई और, मैं नहीं तो कोई और, ये तो होते ही रहने वाला है। सो आई एम नॉट कि वन लेडी जो इनको करियर दे रही है, मेरे जैसे 100 नहीं 1000 लोग हैं जो करियर दे रहे हैं। It's about my satisfaction, it's about my happiness, and it is really important. It is very important क्योंकि for example एक लड़की है, I should not take the name maybe, हाँ, she is an orphan girl। 4 साल पहले वो सिंगिंग कंपटीशन में मुझे मिली और तब से वो हमसे जुड़ी हुई है बिकॉज शी वॉज द विनर। और फिर जो भी विनर्स रहते हैं उनको हम लोग ये करते हैं। तो ऑर्फन गर्ल है, माँ बाप नहीं है, 4 साल हो गए उसके मोबाइल में डीपी मेरा ही लगा।
सो यू नो एंड शी इज सच अ प्रिटी, छोटी सी है, मतलब अभी अबव 18 है इसलिए उसके पास मोबाइल आ गया है. 18 होने के बाद उनको ऑर्फनेज छोड़ना पड़ता है. सो शी हैज दैट मोबाइल. सो शी इज सो गुड लुकिंग. बट मैं उसको बार बार बोलती हूँ कि आप प्लीज आपका डीपी चेंज करो. यू आर सो प्रिटी, व्हाई यू वांट टू पुट माय डीपी. कभी कभी मैं उसके डीपी में जाके मेरा वो स्नैपशॉट लेती हूँ, किसी को फोटो भेजना रहता है. शी नेवर चेंजेस. सो दैट इज द प्लेजर यू नो जो इन लोगों से मिलता है. ये अपने बेटी को भी आप अनायता बोलो या कोई भी बच्चों को आप वाटर पार्क लेके जाओ, वो लोग जितना खुश होंगे. और इन लोगों को देखो वाटर पार्क जाने के बाद कि वो कैसे खुश होते हैं. ओ माय गॉड, अपने बच्चों के पास कितना रहता है, लिटरली इतना ज्यादा रहता है. और इन लोगों के पास, इन लोगों को ये छोटी छोटी खुशियां इतनी ज्यादा मायने रखती है कि उनकी खुशी की वजह से अपने को खुशी मिलती है. तो चैरिटी करो फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ. और प्लीज ये वाला फंडा मुझे देख के तो भी आज निकाल देना कि आई विल डू चैरिटी जब मैं 60 की हो जाऊंगी या रिटायर हो जाऊंगी. पहले मेरा तो 1 करोड़ का बैलेंस बने तब मैं किसी और को दूं. ये सब नहीं होता है. यू नो ये स्टार्ट एवरी टाइम. सो यू नो माई डॉटर इज सो ईगर कि मम्मा मैं कब करूंगी. मैं बोली तू कर रही है ऑलरेडी छोटा मोटा कुछ. तो मेरे दीदी की लड़की हर महीने मेरे को 10 रुपीज भेजती है कि मासी ये अपने केयर फॉर यू में डालना है. सो एनीथिंग इज अ चैरिटी. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा पैसों को ही चैरिटी बोल सकते हैं. मेरी खुद की अंकल की बेटी ने, उसको एक साइकिल मिली थी, बहुत पुरानी बात है ये, उसको एक साइकिल प्राइज में मिली और उसके पास एक साइकिल ऑलरेडी थी. वो एज इट इज वो प्राइज वाली साइकिल उसने मुझे दी कि ये आप दे दो, किसको दे. सो व्हाट शी कुड हैव डन, जो उसके पास थी वो दे सकती थी. हाँ, बट उसने एज इट इज वो साइकिल मुझे दी. एंड सो दिस इज चैरिटी. एंड चैरिटी नेवर वेट्स, यू नो, यू डोंट वेट फॉर इट. एक किस्सा सुनाती हूँ. एक हमने इवेंट लिया था, समर कैंप लिया था बच्चों के लिए. तो वहाँ पे कुल्फी वाले को बुलाया था मैंने. एक कुल्फी डिसाइड हुआ था, जो भी रेट वेट की हर बच्चे को एक कुल्फी देना है. उसने हर बच्चे को एक कुल्फी देने के बाद एक कुल्फी खुद की तरफ से वापस सारे बच्चों को दी. सो दिस इज चैरिटी. Charity begins at home. एंड दिस इज चैरिटी. यार वो कुल्फी वाले का क्या मार्जिन होगा, और वो क्या वो गाड़ी पे कुल्फी लेके आया था. तो जब किसी को चैरिटी करनी होती है, ऐसा नहीं है कि मैं कहाँ से पैसे लाऊं या मैं मेरे खुद के पास ही पैसे नहीं है, मैं ही कमाती नहीं हूँ. इट्स नॉट दैट. चैरिटी मीन्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर जेस्चर्स. एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल पीस. जब आप आपके नीचे के लोगों को देखते हो ना, आपके दुख भी कम हो जाते हैं, अपने आप चले ही जाते हैं. क्योंकि वी आर सिटिंग एट अ वेरी नाइस पोजीशन, वेरी 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 नाइस पोजीशन. तो जब वो लोगों को देखते हैं ना, तो अपन अपने आप ही खुश हो जाते हैं कि अरे बाप रे, ये भी ऐसा भी है क्या. तो ऐसा, दैट इज द पॉइंट. और ये सच में एक्सपीरियंस करो. महीने में से 1 बार, महीने में से 2 बार. देयर आर सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, पुणे में बोलो या जहाँ पे भी आप लोग हैं, कहीं पे भी जाओ, छोटी सी, ये अपने माहेश्वरियों में ना इतना नहीं है, बट ये जैसे लंगर सेवा, यू नो, अपने लोगों में ऐसा कुछ, सब लोग बहुत बिजनेस 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 में होते हैं. बट ये सब चीजें ना अपने को हम्बल बनाती है. तो जैसे एक और ब्यास के एक बाबा जी है, आई हैपन टू बी देयर फॉर 3 days. मतलब मेरे फ्रेंड्स वहाँ के फॉलोअर्स हैं, तो वो लोग हमको लेके गए थे. तो वहाँ पे यू वोंट बिलीव दिस, ब्यास में कभी जाने का मौका मिला तो देख के आना. तो वहाँ पे अराउंड 200-250 एकड़ में पूरा सेटअप है और पूरा की पूरा काम सेवा ही. इट इज ओनली फ्री वॉलंटियरिंग वर्क. तो दिस इज समथिंग दैट इज अनइमेजिनेबल. मतलब वॉशरूम धोने से लेके खाना बनाने से लेके खाना परोसना, एवरीथिंग सेवा. सेवादार बोलते हैं वो लोग लोगों को, और सेवा बोलते हैं जो सेवा लेते हैं. सेवा, हाँ. तो दिस इज, यू नो, हर चीज अभी अपने इस जमाने में ये क्या है, अपन जो बेचते हैं स्क्रैप अपना बेचते हैं, वो क्या, नहीं, कौन सी वेबसाइट शुरू हुई है ना, OLX. तो ये सब चीजों से ना फ्री में कुछ देने की अपनी टेंडेंसी बंद हो
हो गई है, हर टूटी फूटी चीज भी OLX वाई। पहले तो ऐसा नहीं होता था ना, फ्री में चीजें देने की भी भावना एक चैरिटी ही है। हमेशा रद्दी बेच के वो 300 रुपए क्या, मतलब हाउ मच वी आर गोइंग टू अर्न फ्रॉम दैट 300 रुपीज। सो दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज कि वो हम लोग ना दिए बनाते हैं दिवाली में, ये Care4U की तरफ से ना, तो मैनी पीपल ज्वाइन खुद करते हैं। तो मेरे सोसाइटी में एक बंदा है, वो क्या करता है, 300 पैकेट्स दिया, 400 पैकेट दिए खरीदता है, एंड वो ये सिग्नल पे जो बेचते हैं ना, उनको वो एज इट इज दे देता है और बोलता है बेचो। सो दिस इज चैरिटी पीपल, प्लीज अंडरस्टैंड कि चैरिटी के लिए सिर्फ नीयत चाहिए, पैसे तो अपने आप आते हैं। नीयत होगी ना तो पैसों का कुछ सवाल ही नहीं उठता है। एक हल्दीराम का स्टॉकिस्ट या रिटेलर व्हाटएवर, तो हमारा ये थे ओल्ड एज होम की ट्रिप जा रही थी, तो हमने उनको बोला हमको होलसेल रेट में हल्दीराम के पैकेट्स दो, ओल्ड एज होम की ट्रिप जा रही है हमारी, तो सारे पैकेट्स फॉर नेक्स्ट 5 years ही यूज्ड टू गिव। जब भी ट्रिप जाएगी सारे पैकेट्स उनकी तरफ से विदाउट एनी मनी। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो आप लोग ये मत सोचिए कि चैरिटी के लिए एक पर्टिकुलर एज, पहले घर तो देख लूँ, ऐसा नहीं है। घर भी देखा मैंने और ये भी देखा और हर चीज देखा। तो बहुत ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि खुद के बच्चों को तो पहले ये करो फिर दूसरों के बच्चों को, बट अपने में बहुत कैपेसिटी है। जिस माँ को 3 बच्चे रहते हैं ना, वो तीनों को भी उतना ही कर पाती है, 5 रहे तो 5 को भी कर पाती है। मेरे दादी को 5 थे, 5 अच्छे हैं आज। तो दैट इज व्हाट इज द पॉइंट। अपन जितों का करना चाहे अपन कर सकते हैं। वी हैव लॉट ऑफ लव इन अस। अपन 5 क्या 10 को भी लव कर सकते हैं। सो ऐसा मत सोचो कि पहले खुद के बच्चे संवार लो, खुद के बच्चे क्या कर रहे हैं ये देख लो, फिर दूसरों के बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट्स जस्ट इट्स जस्ट अ इंटेंशन। आपके दिल में इंटेंशन अगर आ गया तो यू कैन डू एनीथिंग। I'll take a minute to share a small experience which I do regularly, which I believe charity begins at home. I'm just sharing because I'm inspired by what she has said. अपन दिवाली पे कपड़े देते हैं, दुल्हन में कपड़े अपने मौसी को देते हैं, ड्राइवर को देते हैं, सिक्योरिटी को देते हैं। अपन सारे अपने पहने हुए कपड़े देते हैं, उसमें आप एक नया कपड़ा खरीद के भी दे सकते हैं। वो सारे कपड़े एक साइड और वो एक ही ड्रेस अपने लिए उतना मैटर नहीं करता है। अपन इतना सारा बंडल उठा के पहने हुए कपड़े देते हैं, उसमें आप एक नया जोड़ी दे सकते हैं। We can do this small step, जहाँ पे they'll feel very happy taking your old clothes as well as one new clothes. So this is what we can follow very easily to start with, to begin with for ourselves. Not that like she said ना कि लोगों के लिए नहीं करना है, for ourselves अपन छोटा सा इतना तो कर ही सकते हैं, right? Let us move to a little last or second last question. Now tell us one mantra which you follow or which you will give as a takeaway for our audience to have a successful as well as a contented life. Your mantra which they will take back home. वन मंत्रा नहीं, बहुत सारे मंत्र होते हैं। ओके, बट अभी मेरे दिमाग में जो थॉट आया वो है कि यू हैव 2 options, टू वेयर आउट और रस्ट आउट। आई विल एक्सप्लेन। वेयर आउट मतलब थको कुछ करके, या रस्ट आउट मतलब एक ही जगह बैठ के, क्या बोलते हैं उसको, हिंदी और मराठी वर्ड। सो जंग लगना या थकना, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो माय मंत्रा इज कि कीप डूइंग। स्लो करो, फास्ट करो, थोड़ा करो, ज्यादा करो, बट कीप डूइंग। दिस इज व्हाट आई फील कि आज का जो टॉपिक है, रीस्टार्ट फॉर सम ऑफ यू एंड फॉर मेनी ऑफ यू कीप डूइंग। Whether it is slow, fast, it is giving output, it is not giving output, please wait for it. वो वाला एक स्टोरी है, सबको ही पता है वो स्टोरी कि इंद्रदेव ने बोल दिया था कि 10 साल तक बारिश नहीं होएगी, राइट, ऐसा कुछ। तो सब लोग कुछ नहीं कर रहे थे, बट एक किसान
हल चला रहा था 10 साल, फिर पार्वती माँ ने पूछा कि आप क्यों चला रहे हो, बोले 10 साल में अगर मैं भूल गया हल चलाना तो क्या करूंगा जब बारिश आएगी तब। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैंने बहुत सारे साल नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम किया था और उस टाइम पे बहुत बार फ्रस्ट्रेशन आता था कि यार घर पे कुछ नहीं ला रही हूँ, फालतू में जाके वहाँ पे दिमाग लगा रही हूँ, घर पे अनाहिता है फिर भी वहाँ पे मैं मेरा टाइम डाल रही हूँ, एनर्जी डाल रही हूँ, और एट टाइम्स मेंटल पीस भी, ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी। तुम क्लाइंट के काम करना, कभी कुछ रॉन्ग होता है, कभी ये होता है, चिक 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 चिक, तो बट ये सब के बावजूद वी हैव टू कीप डूइंग। फ्रूट्स आना शुरू होते हैं, नेचर ही सिखाता है कि आम के पेड़ के फ्रूट्स कई सालों बाद आते हैं, तो ये नेचर अपने को सिखाता है कि वेट। आजकल ना इट्स वेरी क्विक, दैट इज ये 2 मिनट वाला फंडा इज वेरी इरिटेटिंग, सीरियसली इट्स इरिटेटिंग कि तुरंत आउटपुट चाहिए, तुरंत आउटपुट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो ये अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि यार ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू स्टडी टिल 10th, उसके बाद ही तुम ग्रेजुएशन में एंटर कर सकते हो। तो ये अपने खुद को भी सिखाओ कि एक ही दिन में या एक ही महीने में या एक ही साल में यू कैनॉट अटेन वॉट यू वॉन्ट टू अटेन। अभी जो मेरा, सपोज किसी को मेरी लाइफ क्लोजली पता होगी या किसी को नहीं पता होगी, तो भी जो कुछ मिला है इट्स अ स्ट्रगल ऑफ 12 years, यू नो, 12 years इट्स नॉट स्मॉल। तो 12 साल दिए, उसके बाद मुझे आज यहाँ खड़े होने का मौका मिला है। एटलीस्ट ये तो मानते हो कि आज मुझे यहाँ स्पीकर करके बुलाया बिकॉज आई हैव गिवन 12 years। सो दैट इज वॉट महेश आइडल के प्लेटफॉर्म पे मैं चुनी गई बिकॉज देर इज अ हिस्ट्री ऑफ 12 years। तो ये हिस्ट्री बनाने के लिए उतनी मेहनत करनी चाहिए एंड क्विकली चाहिए, ये नहीं होता है, टाइम तो लगता ही है बॉस। बच्चा बाहर आने को 9 महीने लगते हैं, तो टाइम तो लगता ही है। I'm done with my set of questions. Guys, if we have some questions from the audience, we'll take. इंफीरियर बहुत बार फील होता है, Like you are working as a social person also. So at that events and in such scenarios where you see many more people, more personalities, at that time what? आई एग्री, सबको कहीं ना कहीं इंफीरियर फील होता है, कुछ थोड़ा सा डर लगता है एंड दैट हैपन्स। स्टेज पे आने के पहले, आज भी 100 बार स्टेज पे आए होंगे तो भी स्टेज पे आने के पहले थोड़ा थॉट प्रोसेस रहता है, अरे मैं बोल पाऊंगी ना। छोटा सा एग्जाम्पल, रत्नाली जी ने इतने अच्छे से बोला, मुझे लगा कि मेरा क्या इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या मुझे तो यही बात बोली, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग की सारे बातें उन्होंने खींच ली है ऐसे। तो इंफीरियर बोलो या डर बोलो, इट इज नेचुरल एंड लेट इट कम, बट उसको ओवरकम कैसे करना है, ये दैट्स द पॉइंट। कि एक तो द बेसिक इज सेल्फ बिलीफ, यू हैव इन यू हैव दैट स्पार्क इन यू। ये अगर आप में बिलीव आ गया ना, देन यू कैन ओवरकम। सो यू आर अ प्रोफेशनल, यू सेड व्हाट हैव यू? I have done BArch. मतलब आर्किटेक्ट। Yes. So I worked for 4 years and then I took a break of about 5 years now. So if I want to come back, I am little nervous. करेक्ट। सो पहली चीज कि तुमने आर्किटेक्चर किया है, मतलब यू हैव इट इन यू। ऑफ कोर्स अदरवाइज तुम ये कर ही नहीं पाते थे, दैट्स द पॉइंट। अगर आपने वो कर दिखाया है, मतलब ही वो आप ही थे ना, 8 साल पहले भी आप ही थे और आज भी वो आप ही हो, और फिर आपने 4 साल काम भी किया है, मतलब ही वो आप ही थे। सो जब तक आप हो इस बर्थ में, वो आप ही हो। सो बिलीव इन यू एंड देन स्टार्ट कॉशियसली। यू नो, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि कल जाके एक आर्किटेक्चर के फोरम में जाके आप बोल दो, ऑफ कोर्स नॉट, यू शुड नॉट डू दिस, बट देन स्टार्ट स्टडिंग, एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। ऐसे तो नहीं होगा कि मैं खुद में बिलीव करती हूँ करके पूरा बिलीव आ जाएगा, ऐसे नहीं। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड स्टार्ट टेकिंग एफर्ट्स। वापस रीड करना शुरू करो और एक रिवर्स गियर में जाने के लिए एग्री हो जाओ प्लीज। ये माइंडसेट अच्छा हुआ याद आया आपके क्वेश्चन के हिसाब से। रिवर्स गियर में तो लायन भी एक पैर पीछे डालता है ना जब उसको टाइगर या जंप लेना रहता है। रिवर्स गियर में जाने के लिए शुरू हो जाओ। ये ईगो मत लो कि 4 साल पहले मैं 50,000 रुपीज पे काम करती थी, मैं आज
20 पे नहीं कर सकती हूँ, या मैं आज फ्री में किसी के अंडर नहीं कर सकती हूँ, प्लीज ये फंडा मत लो प्लीज। जब मैंने सीए की प्रैक्टिस शुरू की थी, एक कदम सर है जो मतलब ही इज माय फर्स्ट सीनियर सीए, तो उन्होंने मुझे बोला था कि कोई काम को मना मत करना। मैंने लिटरली 100 रुपीज में इनकम टैक्स के रिटर्न भरे हैं। सो आई टेल यू कि ऐसा अगर आपको कोई मेंटोर मिल रहा है, फ्री में भी करो, ऐसा मत। ये बहुत सारा फंडा है जो रीस्टार्ट के Rather we have these difficulties when we meet people, you know, we meet females and we say that they want to work, they want to come back to profession, but then the same thing, I was working with 50,000, now I cannot do that. After 6 months you work, at least you work, take an experience, get that confidence in you, and then you can come on to the people saying, nahi, abhi I want so much of amount. So a reverse gear is must if you want to relaunch and, you know, restart your career. रिवर्स गियर में जाने के लिए ईगो बीच में मत लाओ प्लीज, बिकॉज इट्स अ लॉजिक यार। तुम लोगों ने ब्रेक लिया, तुमको नेचर ने या सोसाइटी ने तो ब्रेक लेने के लिए नहीं बोला था ना। सबको बच्चे होते हैं, सबकी शादियां होती है, बट इट वाज योर डिसीजन टू फोकस ऑन योर चाइल्ड। तो तुमको रिवर्स गियर क्यों नहीं लेना, इसमें इतना बड़ा ईगो प्रॉब्लम क्यों है? अगर आप लोग स्पीड में पीछे रह गए हो, सब लोग आगे चले गए, तो थोड़ा रिवर्स गियर लो, थोड़ा किसी को असिस्ट करो एंड देन जंप बैक। सो अभी केयर फॉर यू में एक लेडी ज्वाइन हुई है, वेरी वेल टू डू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बच्चे हैं, एक इंजीनियरिंग एक सीए कर रहा है। तो अब वो करूँ क्या घर में बैठ के? सब लोग इतने बिजी हो गए कि उसको ऐसे लग रहा है मैं घर में बैठ के करूँ क्या। तो नाउ शी हैज स्टार्टेड वर्किंग विद केयर फॉर यू, ओके, एंड जस्ट फॉर सम अमाउंट शी स्टार्टेड, विच इज शायद उनको वो जरूरत भी नहीं होगी, दे आर वेरी वेल टू डू। वो लोग वेकेशंस वगैरह पे जाते होंगे तो वो 1 मिनट में ऐसी अमाउंट निकल जाती है, वैसी अमाउंट्स पे उन लोगों ने ज्वाइन किया। सो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट गेटिंग इन्वॉल्व, गिविंग योर ब्रेन। वो जो इन्होंने बोला कि आपके दिमाग को चालना मिलती है, तो ये सब चीज़ों के लिए आई फील रिवर्स गियर में जाके थोड़ा पढ़ो एंड देन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन। फिर वो इंफीरियर कब फील होता है पता है अपने को? जब वहाँ पे नॉलेज कम होता है। तो जब केयर फॉर यू की बात आती है, मुझे कभी इंफीरियर फील नहीं होता है, बट जब ऐसी कोई बात आती है जहाँ पे यू नो सपोज आई एम अ सीए बट आई हैव नेवर डन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ओके, और अगर यहाँ पे एक मीटिंग है जहाँ पे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डिस्कस हो रहे होंगे, आई विल इमीडिएटली गो एंड सिट इन सम कॉर्नर। बट उसी जगह पे अगर तुम मुझे यहाँ बुलाए हो और बोल रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट पे बात करो, आई विल बी वेरी bold enough to talk on it. If you call me and tell about care for you, of course I will talk. But if something that you don't know, people are talking, you feel inferior. So आप आपके किटी में inferior नहीं feel करते क्योंकि सब लोग अपने घर की बातें और friends की, yeah, of course, that is the truth. जो चीज में अपने को पता नहीं रहता है ना, अपने को inferior feel होता है, and at that moment break that ice. मुझे इसके बारे में नहीं पता है, ये बोलने में भी बहुत गट्स लगते हैं। एंड आई टेल, मैं सीए हूँ तो अभी 3 सीए बात कर रहे होंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि, और ये सब सीए के साथ होता है और सब प्रोफेशनल्स के साथ होता है कि अरे ऐसा भी कुछ हो गया, मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसा हो गया, कब हो गया, तो थोड़ा सा गूगल कर लेने का, अच्छा ऐसा हुआ है। फिर भी हैव दैट गट्स टू से कि आई डोंट नो, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा, थोड़ा ब्रीफ कर दो। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वो जो सामने वाला इंसान है ना, उसको भी बहुत सारी चीजें नहीं पता रहती है। ऐसा होता है कि nobody knows everything. And ours is a field which has every, not just day, every hour we have legal updates coming into pictures. So to track them is difficult, and at least working females like us who are practicing as a chartered accountant, taking up all you household responsibilities and all, अब रोज जाके नहीं पढ़ सकते आज के अपडेट आया कल क्या है, that's okay. That's really okay, and you are an architect. So आप खुद ही एक स्टूडेंट बन जाओ, फिर इंफीरियोरिटी पूरी खत्म ही हो जाएगी ना। आप खुद ही जाके उनको बोलो कि मुझे तो सीखना है बाबा। तो अब जब ये आप एक स्टूडेंट के रोल में चले जाओगे तो इंफीरियोरिटी खत्म। ट्रू। एंड इवन लाइक आपने जैसे बताया कि लाइक मैं ऑफिस में जा रही हूँ, जैसे मैं भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ, डेडलाइंस होती है, कभी कुछ अर्जेंसी होती है, तो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं हो सकती जब उसको ज़रूरत हो। तो
जब घर पे आते हैं तो सबसे बड़ा गिल्ट होता है कि इसको खाना खिलाना था या फिर खाना ठीक से बना नहीं है उसका, तो गिल्ट के साथ कैसे डील किया जाए, मतलब आप कैसे करते हैं? हाँ, गिल्ट होता है, बट फिर जैसे गिल्ट को ओवरकम करने के लिए कॉशियस स्टेप्स ले लो, जैसे कि खाना उस तक पहुंच गया हो, यू नो, भले ही वो स्विगी से या आपकी मेड से या आपके नेबर से। ये गिल्ट को कम कैसे करें, ये तो एक देख लो कि कितने बजे उसको खाना पहुंचना था उतने बजे पहुंच गया है, और जिसने उसको खिलाना था उसने उसको खिला दिया। तो एक बात मैं बोलूंगी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना नहीं है, तो गिल्ट कम होता है अपने आप। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उस तक खाना पहुंचे और कोई उसको खिलाए खाना। तो ये अगर आपने कर लिया है ना, तो फिर थोड़ी बहुत गिल्ट आती है ना, तो उसको लेट गो कर देगा, कुछ नहीं होता। थैंक यू। और आती है गिल्ट, नो डाउट कि यार उसने कभी कभी तो मेरी डॉटर ऐसे अचानक बोलती है कि कल जैसे कि कल मुझे पास्ता चाहिए टिफिन में, तो हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसे आज रात को बोलेगी कल चाहिए। तो कुछ कुछ चीजों में गिल्ट बीच में मत लाओ, यू नो, इफ यू हैव डन योर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते यार। शादी की है और एक बेबी की है, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, बट उनकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो आपने पूरी की, तो फिर वो गिल्ट को इग्नोर करो और धीरे धीरे यू विल ओवरकम इट। फिर धीरे धीरे यू विल फील कि यार ठीक है, दिस इज द बेसिक। उसके पेट में खाना जाना चाहिए, अच्छा हेल्दी खाना जाना चाहिए, हमेशा ही 5 वैरायटी का खाना जाना चाहिए। दैट्स वेयर इफ यू आर इन दैट टाइप ऑफ गिल्ट देन इट्स नॉट पॉसिबल। तो छोटी जो बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी करते हो ना, तो वो गिल्ट अपने आप जाती है। और बहुत सारे एंटी सोशल फैक्टर्स रहते हैं जो गिल्ट लाते हैं अपने अंदर, उनको इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे रत्नानी ने बोला था किसी को कि वाओ दैट्स गुड, इट्स ओके। आपको सुनने मिलेगा पहले तो एकदम ही फ्रेश गरम रात को सुबह का सुबह खाना बनाती थी, अब क्या? तो बोलना आप थोड़ा सा खुद पे भी देख रही हो, इट्स नॉट अ गिल्ट। यू नो, अभी आप लोगों में से बहुत लोग अभी भी ऐसा करते हैं, मेरी मम्मी भी करती है, मेरी सास के यहाँ पे भी एवरीवेयर की रात का खाना रात को, सुबह का खाना सुबह। बट मैं रात का भी 70% खाना सुबह ही बना के जाती हूँ। तो दैट्स व्हाट आई हैव टू डू, अदरवाइज फिर मैं रोज शाम को आऊंगी और मैं थकी भी रहूंगी और रोज बच्चों पे चिड़चिड़ करने का कि नहीं मैं ये नहीं ऐसे। तो ये सब चीजों के से बेटर है कि आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखो, और फिर वो जो गिल्ट है वो नहीं रहेगा, क्योंकि खाना तो सुबह ही बना हुआ रहेगा, तो वो गिल्ट ही नहीं आएगा ना। तो ऐसा मेरा ये वाला गिल्ट कभी आता ही नहीं है कि उसने खाना खाया होगा, तो खाना तो बना हुआ ही है सुबह से। A soothing, peaceful note, we'll sing a song and we'll end. So that's a song for what drives me for Care for You, and maybe any of you take it up. So please sing with me today, my throat is bad. Yeah, I'll start with this. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार।